Hello students, this is lecture number 9 on topic magnetic effect of electric current. In last lecture, we discussed about the magnetic field of induction at the point on the axis of the conductor. The length upward and length downward extends up to infinity. This conductor is carrying the current from N towards the M. Current upward carry current. So if it is carrying the current in upward direction, then according to right hand thumb rule, it gives magnetic field on the right hand side, which is normally inward, and gives magnetic field on the left hand side, which is normally out. तो कंडक्टर का राइट में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नॉर्मली इनवर्ड है, तो क्रॉस इन सर्कल से दिखाने का, और अगर लेफ्ट में जाओगे तो डॉट इन सर्कल से दिखाने का. ठीक है. Now this is the point of observation where we are about to find magnetic field of induction due to the conductor. ये shortest distance है point of observation का from the conductor. तो let point of observation is at a distance capital R from the conductor. Now to find out the magnetic field of induction at point P, मुझे एक length element लेना होगा. Let me find out magnetic field of induction at point P due to the length element. फिर हम लोग जनरलाइज करेंगे. तो यहाँ मैंने ये लेंथ एलिमेंट लिया dl. This length element is dl. Its midpoint is A. So distance of this length element from point O is what? Small l. If this midpoint is joined with the point of observation, then this distance is what? R, and this distance is making an angle theta. तो theta क्या हो गया? Angle between direction of current and position vector of point of observation. ये theta है, तो अंदर से pi minus theta ले लेंगे. तो from this length element, इस length element में से current कितना पास हो रहा है? I. तो ये current element कितना हो जाएगा? IDL. So because of current IDL, what is the magnitude of magnetic field at point P? Direction तो मैंने already बोल लिया कि normally inward रहेगा. According to right hand thumb rule. Fingers को turn करो around the conductor, thumb along the direction of current रहेगा. तो right में magnetic field normally inward रहता है, left में outward रहता है. Now ये sample है DL, current pass हो रहा है I, तो ये current element हो गया. From the current element, how far the point of observation P is, the distance is R. So what is the magnetic field at point P according to Biot-Savart's law? ये formula यहाँ पे आ जाएगा. ये देखिए. dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon R square. Okay. What is theta? Is angle between direction of current element, यानी upward, and position vector of point of observation. ये theta है, right? ये theta यहाँ पे है. Now, अभी एक assumption लेते हैं कि ये जो current element है, above the current element, length of the conductor extends up to infinity. And below the current element also, length of the conductor extends up to infinity. यानी point A के ऊपर infinite current elements available है, और point A के नीचे भी infinite current elements are available. तो above the point A जितना magnetic field रहेगा सब current element की वजह से, उतना ही magnetic field रहेगा because of current elements which are present below A, right? तो A के ऊपर जितना करंट एलिमेंट्स है उनका मैग्नेटिक फील्ड मानो इंटीग्रेशन dB है, क्योंकि एक सैंपल है, सैंपल का इंटीग्रेशन, एक सैंपल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना dB. यहाँ से ऊपर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? इनफाइनाइट. सो बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? तो dB का इंटीग्रेशन ले लो जो 0 से इंफिनिटी तक एक्सटेंड होगा. मतलब ये वैल्यू, ये देखो,
0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर मैंने ये 0 लिया तो इन्फिनिटी तक लेंथ है एक एलिमेंट का db, तो इंटीग्रेशन db लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी gives me a magnetic field of length element above the point A. Below the point B उतना ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन db को डबल कर लो। फैक्टर 2 क्या है समझे, क्योंकि above the point A and below the point B number of elements present are infinite in number. सैंपल मैग्नेटिक फील्ड db है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इंटीग्रेशन db। अगर मैं इसको 0 कंसीडर करूं तो 0 टू इन्फिनिटी ऊपर, 0 टू इन्फिनिटी डाउनवर्ड, लेकिन डबल कर। दिस इज, या तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेना तो ये फैक्टर 2 चला जाएगा। अगर मैं ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखूं, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी वाला है और ये ऊपर का प्लस इन्फिनिटी, तो अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखूं तो फैक्टर 2 नहीं आएगा। लेकिन आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। आई अगेन रिपीट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाला इंटीग्रेशन आप अगर 0 टू इन्फिनिटी करना चाहते हो तो डबल कर लेना, ये प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा है इंटीग्रेशन। तो ये आ गया 2 टाइम्स म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी यहाँ सब मैथमेटिकल पार्ट है। कैसे, पहले हम लोग यहाँ से साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे। अपना एम क्या है अभी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, इन टर्म्स ऑफ आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में एल है, साइन थीटा है, आर, इन सबको भगा के हम लोग कैपिटल आर को इंट्रोड्यूस करेंगे बाय बेसिक ज्योमेट्री नॉन टूल्स। अभी देखो, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है, तो मैं ये r को इन टर्म्स ऑफ r रिप्लेस करता हूँ। तो अगर मैं साइन पाई माइनस थीटा लूँ तो साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट, r अपॉन स्मॉल r। साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, so r अपॉन r। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही होते हैं। साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन नहीं आएगा। ये हो गया साइन थीटा का रिप्लेसमेंट, r अपॉन r। बट व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है, तो स्मॉल r इज व्हाट, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट में ये आ गया। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ साइन थीटा। और ये r स्क्वायर है, इसका रिप्लेसमेंट क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दिस इज हाउ रिप्लेसमेंट। वापस देखो, साइन थीटा मैंने कैसे रिप्लेस किया, साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा एक ही है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री वैल्यूज का सेम होता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। लेकिन पाइथागोरस से स्मॉल r क्या, l स्क्वायर और r स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो ये रिप्लेसमेंट आ गया पहला, ठीक है। और ये स्मॉल r का रिप्लेसमेंट, तो ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी। ये देखो इंटीग्रेशन 2 ये कट हो गया इधर, म्यू 0/2 पाई आई आ गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ध्यान रहे, अगर आपको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेना है तो ये फैक्टर 2 नहीं लेने का, तो भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके वापस 0 टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा, एंड दैट टू डू आपको फैक्टर 2 लेना ही पड़ता है। वो बेसिक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा। तो मैंने साइन थीटा को रिप्लेस किया, ये देखो आई डी एल, ये रिप्लेसमेंट है स्मॉल r स्क्वायर का, और ये रिप्लेसमेंट है साइन थीटा। अब ये वापस थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 2 है, और ये है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 1/2। तो ये अगर क्लब करेंगे तो ये रेस टू 3/2 हो जाएगा। तो अगला स्टेप ये आ जाएगा, ये देखो ये अगला स्टेप आ गया, आर डी एल, ये रेस टू 3/2। अभी वापस यहाँ पे कौन बचा है, डीएल और एल बचा, इनको भी भगाएंगे यहाँ से, कैपिटल आर तो आ गया। तो कैसे देखो, हम लोग डीएल को इन टर्म्स ऑफ आर सब्स्टिट्यूट करें। अप्रोच क्लियर है कि डीएल नहीं चाहिए, डीएल की जगह कैपिटल आर चाहिए, स्मॉल आर भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल आर क्या इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एनी करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट किधर भी हो सकता है ना, तो वैल्यू ऑफ आर वेरीज फ्रॉम कैपिटल आर टू इन्फिनिटी।
स्मॉल आर का कम से कम वैल्यू कितना होगा, कैपिटल आर, अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो, या स्मॉल आर कैन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी, अगर ये एलिमेंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेगा तो स्मॉल आर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मेरा अभी काम है डीएल और एल को इन टर्म्स ऑफ आर रिप्लेस करना। तो डायग्राम में देखो, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए ओ पी, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में मुझे क्या करना है, एल को आर में कन्वर्ट करना है। तो मैं एल का सामने का एंगल लेता हूँ, ये टेम्पररी एंगल है, ये अल्फा। तो ये अल्फा के लिए एल अपोजिट है और आर एडजेसेंट है। आर लेना नहीं है, हमें ध्यान रहे, आर कहीं से भी इंट्रोड्यूस नहीं करने का। एंड सिंस आर इज हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं लेंगे, बिकॉज दे विल इंट्रोड्यूस हाइपोटेन्यूज, तो नहीं लेंगे, टैन लेंगे। तो अगर यहाँ एंगल अल्फा है, तो अल्फा का सामने कौन है, एल, और एडजेसेंट कौन है, आर। तो एल अपॉन आर इज टैन अल्फा, ये आ गया। सिंस वी आर रिप्लेसिंग द स्मॉल एल, तो स्मॉल एल के लिए राइट हैंड साइड देखो, ये हो जाएगा आर टाइम्स टैन अल्फा। तो यहाँ इक्वेशन 3 में ये एल हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये एल रिप्लेस करेंगे, कैसे देखो, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 3/2 है ये साइड। ये एल अभी रिप्लेस कर दो बाय आर स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा, ये एल रिप्लेस कर दो बाय आर स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा, और ये आर स्क्वायर तो वैसे ही है। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद स्क्वायर पावर और ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 पावर आ जाएगा, तो दैट इज हियर। और ब्रैकेट में बचेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, बट tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज व्हाट, सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये डिनोमिनेटर मैंने देखो आर और अल्फा से रिप्लेस कर दिया। अभी मुझे अल्फा भी नहीं चाहिए, तो देखते उसको भी रिप्लेस कर दिया। ये हो गया डिनोमिनेटर का रिप्लेसमेंट। ओके, एल इज इक्वल टू कितना है, आर अल्फा। अभी डायग्राम में देखो, अगर एल चेंज होगा तो एल ने जो एंगल सबटेंड किया एट पॉइंट पी, ये भी चेंज होगा। अगर एल चेंज होगा तो ये एंगल अल्फा ही चेंज होगा। इसका मतलब अल्फा इज फंक्शन ऑफ दिस लाइन। तो एल का डेरिवेटिव लेंगे तो अल्फा भी डेरिवेटिव में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एल का डेरिवेटिव लिया, तो ये हो गया डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो मुझे डी एल का भी रिप्लेसमेंट मिल गया, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ये ऑलरेडी आर यहाँ पे है और ये आर आ गया, तो आर स्क्वायर आ गया ऊपर, आर स्क्वायर इस इक्वेशन में, ध्यान दें इस इक्वेशन में आर, ये डीएल मैंने सब्स्टिट्यूट किया आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, दैट आई पुट हियर। और हम लोगों ने ऑलरेडी डिनोमिनेटर ये फाइंड आउट करके रखा है, इक्वेशन बी, ये भी सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर, ये देखो आर कम हो गया, ये 1/r बचा, और सेक स्क्वायर अल्फा प्लस अपॉन सेक्स क्यूब अल्फा, 1/6 सेक अल्फा बचा, बट 1/सेक अल्फा इज व्हाट, कॉस अल्फा। यार बाहर ले लो, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया था। अब यहाँ इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी था, ये देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी था, और फिर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लेके ये लेंथ का एक्सटेंशन था, ये लेंथ के लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा आ गया, तो अल्फा के लिए मुझे लोअर और अपर लिमिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो लेट मी रिप्लेस 0 टू इन्फिनिटी बाय द लिमिट्स विच आर फॉर एंगल अल्फा। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो अगर ये पॉइंट ए ओ को कोइंसाइड होगा, पॉइंट ए ओ को कोइंसाइड होगा, तो स्मॉल एल टेंड्स टू कैपिटल आर रहेगा। पॉइंट ए कोइंसाइड्स विद द ओ, स्मॉल एल टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो एंगल अल्फा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये देखो स्मॉल एल टेंड्स टू 0 करोगे तो एंगल टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लेंथ का लोअर लिमिट अगर 0 है तो एंगल का लोअर लिमिट कितना लेंगे, लेंथ का लोअर लिमिट अगर 0 है तो एंगल का लोअर लिमिट भी कितना हो गया, 0 है, एक लिमिट आ गया। अगर हम लोग ये एल बढ़ाते जाएंगे, पॉइंट ए ऊपर 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 शिफ्ट करें, लेट द पॉइंट ए शिफ्टेड एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो जब लेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, अल्फा टेंड्स टू π/2 हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे, ये एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एट द मोस्ट क्या आएगा, P point and O point will come very very close to each other, so this angle will not become 90 degree but tends to 90 degree। ये कंडीशन है।
तो जो लिमिट लेंथ का 0 है उसका करस्पॉन्डिंग अल्फा का लिमिट कितना 0, और जब लिमिट अपर लिमिट लेंथ का इन्फिनिटी हो जाएगा तो अल्फा का अपर लिमिट π/2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिमिट्स रिप्लेस कर 0 टू इन्फिनिटी की जगह 0 टू π/2 लेके आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको रिपीटेडली देखो। ये सेक्स स्क्वायर रिड्यूस हो गया, आर रिड्यूस हो गया, ये आ गया यहाँ का। अभी डेरिवेटिव ऑफ cos अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा इज व्हाट sin अल्फा, वेयर अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। सब्स्टिट्यूट करो, sin π/2 minus sin 0, sin 0 is 0, so sin π/2 is what 1, the 1 minus 0, clear? तो ये फॉर्मूला आ गया, b is equal to mu 0 I upon 2 pi r। दिस इज द, या मैंने 4 पाई यहाँ मैनेज किया, तो 4 पाई हमेशा मैनेज करने का, तो फॉर्मूला याद रखना आसान रहता है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। This is the magnetic field of induction at a point near the straight conductor of infinite length and carrying the electric current। अगर ये कंडक्टर करंट I कैरी कर रहा है, इसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो उसके नियर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये रहेगा। ठीक है, अभी इसके कुछ स्पेशल केस हम लोग देखते हैं। स्पेशल केस क्या देखते हैं, ये फॉर्मूला है। मानो ये लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, ये लेंथ मैंने एक पॉइंट तक कंस्ट्रेंट किया या कन्फाइंड किया, ये लेंथ मैंने x पॉइंट तक पकड़ा और y पॉइंट तक पकड़ा, इनफाइनाइट तक नहीं कंसीडर किया। लेट द पॉइंट इज कंसीडर्ड अप टू द x एंड अप टू द y। तो नॉर्मली ये जो एंगल θ1 और θ2 90 डिग्री हो जाते हैं, अभी एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, तो मैं क्या करेगा, देखो मैंने मैनिपुलेट किया, ये 2 को मैंने 1+1 ब्रैकेट में लिखा, ये 2 को, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2 को मैंने ब्रैकेट में 1+1 लिखा, तो जो 1+1 मैंने ब्रैकेट में लिखा, आई कैन रिप्लेस बाय देम sin π/2 sin π/2, राइट। तो जब लेंथ इंफिनिटी तक रहता तो ये एंगल θ1 और θ2 π/2 रहते ना, तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन एंगल कितना है अभी θ1 है θ2 है, तो देखो ये sin π/2 रहेगा अगर लेंथ इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन लेंथ हम लोगों ने फाइनाइट किया, तो ये जो एंगल है ये एंगल हो गए लेस देन π/2 लेस देन π/2, ये दोनों याद रखो। ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेथड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिया। sin π/2 sin π/2 ये आ गया, ध्यान रहे। हाँ, ये मैं वापस बोल रहा हूँ, ये लेंथ अगर इन्फिनिटी तक रहता तो ये जो एंगल θ1 एंड θ2 ना, दोनों कितने रहते, π/2 रहते, तो ये sin π/2 और sin π/2 1 1 आ जाता, और ये 2 यहाँ पे आ जाता, ये 2 यहाँ पे आ गया, देखो इसे उल्टा है, ये मैनिपुलेशन है। एंगल जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलते हैं, क्योंकि θ1 एंड α1 कॉम्प्लीमेंट्री, ये 90 डिग्री है, θ2 एंड α2 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लेने का, sin θ की जगह sin α भी ले सकते, sin θ2 की जगह sin α2 भी ले सकते, ये यहाँ के एंगल। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज्यादा काम है। देखो जब लेंथ, ये जो लेंथ है, when this length tends to infinity, तो क्या हो जाएगा, θ tends to π/2 हो जाएगा and alpha tends to 0 हो जाएगा। ये देखो θ tends to π/2, alpha tends to 0, जब ये लेंथ आप इंफिनिटी तक कंसिडर करोगे दोनों साइड में, तो देखो θ कितना हो जाएगा, मैंने बोला π/2 तो 1 1 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया। अल्फा कितना हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो अल्फा अगर 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, cos 0 1 cos 0 1, ये 1+1 2 हो जाएगा, वापस ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये दोनों जनरल फॉर्मूले, इसका स्पेशल केस है। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ 50% चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे, देन विल प्रोसीड फॉर अ फर्दर टॉपिक। थैंक यू।